Hello everyone, this is Gary from Fantastic Fundas and we are on lecture 6 Modern History series. And before we move ahead, like always, I'll suggest you that you listen to the lectures before this and uska link आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर click कीजिए. And very importantly, you must listen to introductory lecture because from that you will come to know what we are doing, and then I'll quickly tell you what we have done before this. We have done 2 lectures on Mughals, which were on earlier history of Mughals and then later Mughals, and then after that we did whole of India. I'm just giving you the structure of how we have done the things. And in the 3rd lecture we covered Marathas because it was a huge topic in itself. Then in 4th lecture we covered all the small states which were rebellious states, and then we covered the succession states. We are done with Battle of Plassey, Battle of Buxar, all those so many treaties, and now Britishers in very firm control. Now in the next lecture after this, the thing that comes is that how British entered India, how they were fighting not just Indians and also the Portuguese, Dutch, French, all those people. Will be talking about that. But before that, in all the earlier lectures we have just done, I want to talk about the socio-economic, educational and cultural condition in India in 18th century. So let's talk about it. So first we'll talk about the social and economic conditions of the people. Now you must first understand the basic that no socio-economic progress was made during this time. Obviously, how will there be progress? कोई socio-economic progress कब होती है जी? तब होती है जब peace हो. लेकिन as we saw in earlier lectures before this, was there any peace? No, people were busy fighting. There were fights, there were wars, and then there were British interfering into our trade. How can there be progress, right? So there was no socio-economic progress. Moreover, people did not have scientific rational attitude. So what were the reasons? We'll talk about them. First of all, revenue demand. देखो अभी तक हमने every time we read, whether it was Tipu Sultan or the Sikhs or the Marathas or the Mughals, everyone, they were taking high revenue. Some of them might be lenient in collection, some of them were very strict, some were brutally strict, लेकिन revenue तो सभी ने मांगा पेजेंट से. दूसरा, ऑफिशियल्स तंग करते थे, मांगते हुए ज्यादातर ऑफिशियल तो तंग ही करते थे. तो सोशल इकोनॉमिक कल्चरल प्रोग्रेस नहीं ना हो सकती. ग्रीड एंड रेपेसिटी ऑफ नोबल्स. रेपेसिटी अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब होता है ऐसी भूख पैसे की कि जो मिटे ही ना. तो लोगों के अंदर एक होता है लालच और एक होता है रेपेसिटी. लालच से भी बड़ी चीज होती है रेपेसिटी. और रेवेन्यू फार्मर, जमींदार, इन सबको लालच था अपना, ये लूट लेते थे लोगों को. फिर मार्चेज एंड काउंटर मार्चेज ऑफ राइवल आर्मीज, लड़ाइयां जी बेसिकली. डेप्रेडेशंस ऑफ न्यूमरस एडवेंचरर्स. कभी नादिर शाह आ रहा है, कभी हमेशा अब्दाली आ रहा है, कभी हमारे अपने ही लूट के लेके जा रहे हैं. कभी मराठा ने केरला पे अटैक कर दिया, कभी मराठा ने दिल्ली पे अटैक कर दिया, कभी टीपू सुल्तान ने केरला पे अटैक कर दिया. कुछ ना कुछ चल रहा है. कुछ ब्रिटिश एंड फ्रेंच आपस में लड़ रहे हैं फॉर हु विल सक इंडियाज वेल्थ. कभी बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, कुछ बैटल ऑफ वंडी वॉश, मतलब बहुत सब कुछ हो रहा है. अब क्या हो रहा है? जब लड़ाई होती तो सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैसे होगी? ना सोसाइटी आगे बढ़ती, ना इकोनॉमी आगे बढ़ती है. तो ये था इंडिया का सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ. बड़ा सिंपल सा लेक्चर है आज का. अगला लेक्चर होगा जबरदस्त. तो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस बिकॉज ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आजकल प्रीलिम में भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं. तो नेक्स्ट है पेजेंट की कंडीशन क्या थी, एग्रीकल्चर का क्या हाल थे. इंडिया लैंड ऑफ कंट्रास्ट बन गया उस टाइम पे, जैसे आज ना हो वैसे आज भी है. पॉवर्टी बहुत ज्यादा और एक तरफ नोबल्स की लग्जरी बहुत ज्यादा, और पेजेंट वर्सेस नोबल की बात हो गई. एक तरफ पेजेंट एक तरफ नोबल. बट इवन दिस लाइफ वाज बेटर फॉर इंडियंस व्हेन कंपेयर टू लाइफ आफ्टर 100 years व्हेन ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया. 18वीं सदी, व्हेन वी सी 18th century, मैं बार बार आपको कहता हूं इसका मतलब क्या होता है 1700 से लेके 1799 तक. अब इस दौरान जो हाल थे पेजेंट के, किसान के, खेती के, दे वर बेटर, दे वर वर्स बट दे वर बेटर देन जो ब्रिटिशर्स कर देंगे 100 साल बाद. और इसीलिए देखो 1857 में, 1857 में फिर जाकर रेवोल्यूशन भी होगी. वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट ऑल्सो. एग्रीकल्चर की बात करें
कैसा एग्रीकल्चर होगा? देखो कुछ बड़ी ऑब्वियस सी बातें हैं। एग्रीकल्चर क्या हमारा कैपिटल एग्रीकल्चर था? व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एग्रीकल्चर? पता है किसी को? सोचिए थोड़ा सा। कैपिटल एग्रीकल्चर होता है जिसके अंदर कैपिटल इन्वेस्ट हुई हो। कैपिटल इन्वेस्ट होकर क्या खरीदेंगे? ट्रैक्टर, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, ऐसी चीजें खरीदेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है जी। बैकवर्ड था और स्टैग्नेंट था, यानी कि खेती बाड़ी करने की जो टेक्निक थी वो अच्छी नहीं थी और ना ही प्रोडक्शन के अंदर कोई इंक्रीज हो रहा था, ठीक है जी। टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन अगर हम देखें पिछले कई 100 सालों से वैसे ही यूज हो रहा था। जो हल चलाने का तरीका था कुछ भी एडवांस नहीं था। पेजेंट को बहुत ही कम मिलता था जो वो ग्रो करता था। एक एस्टिमेट है, मैंने अलग अलग एस्टिमेट है अलग अलग बुक्स में, अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट जो हम कह सकते हैं जो सभी एग्री करेंगे 1/3 ही उसे मिल पाता था स्टेट। क्यों 1/3 क्यों मिलता था? पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, कभी जमींदार, कभी जागीरदार, कभी रेवेन्यू फार्मर, सबको अपना हिस्सा चाहिए था। एवरीवन वांटेड हिज और हर ओन शेयर। And this was not just happening under Mughals, I tell you, this was happening under Marathas and the Sikhs and all the successors, whether they were Bangash or the Ruhellas, under everyone this was happening. Because ultimate source of revenue was agriculture only for the government. There was no industry. We talked about this earlier also. Industry came to England, after industrial revolution only. We will be covering that in world history, the industrial revolution and everything. But look here you cannot imagine industry in India at this time. So this was the only source of revenue. Obviously it will be taxed. So let's talk about trade now. We were though trading few things. What else was there apart from agriculture if not much of industry? We were importing lot of things and of course we were exporting lot of stuff, but import क्या कर रहे थे? import का मतलब होता है बाहर से मंगवाना, export का होता है इंडिया से बाहर बेचना, ठीक है जी। अब जब इंडिया बाहर से मंगवाएंगे सामान तो पैसे यहां से बाहर चले जाएंगे, ठीक है जी। अब हम देखते हैं पर्शियन गल्फ का जो इलाका है, जहां से हम क्या मंगा रहे हैं, वहां से हम मंगा रहे हैं, दिस इज द पर्शियन गल्फ एरिया। यहां से हम क्या मंगा रहे हैं जी? पर्ल्स, रॉ सिल्क। देखो डेजर्ट है, क्या आएगा खुद आप ही सोचिए। डेट खजूर आएगी, ड्राई फ्रूट आएगा, रोज वाटर आ रहा है। अगर हम अरेबिया रीजन की तरफ चले जाएं, ये थोड़ा सा इस सऊदी अरेबिया या नदर्न अफ्रीका इस तरफ अगर देखें तो नॉट एग्जैक्टली अरेबिया, पूरे रीजन से कॉफी, गोल्ड, ड्रग्स और शहद आ रहा था, ठीक है। यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल दिस, जस्ट टू गिव यू अ वेग आइडिया। अगर एक आधा भी आप याद कर लेंगे दैट विल बी इनफ फॉर द पेपर। आपको एक आइडिया लगेगा कि हम दुनिया से इंपोर्ट कर रहे थे। पेपर में क्वेश्चन बहुत सिंपल आएगा, इंडिया हार्डली इंपोर्टेड एनीथिंग ड्यूरिंग द 18th century। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि वी वर इंपोर्टिंग लॉट ऑफ थिंग्स। इंडिया वॉज सेल्फ सफिशिएंट, इंडिया वॉज नॉट सेल्फ सफिशिएंट बिकॉज वी हैड टू इंपोर्ट सो मच। अच्छा, चाइना से अब होता है, बस सोचिए क्या आएगा। चाइना से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आएगी, चाइना से आएगी चाय, चाइना से चाय, चाइना से टी, शुगर। और चाइना में आपने सुना होगा पोर्सिलेन चाइना से आया था, और सिल्क चाइना से, सिल्क रूट चाइना से चलता है। सिल्क की एक्चुअली में अगर देखा जाए डिस्कवरी चाइना में हुई थी। तिब्बत से क्या आएगा? तिब्बत से गोल्ड आएगा, मस्क आएगा। तिब्बत में तो ठंड भी बहुत होती है, वूलन क्लोथ्स वहां से आएंगे। एक बड़ा टिपिकल है, अगर आप याद रख सके इस बात को, सिंगापुर से टिन आता था इंडिया में उस टाइम पे। अगर इंडोनेशिया की बात करें वहां से, अब इंडोनेशिया से क्या है? अब आप सोचेंगे कि इंडिया नेवर इंपोर्टेड स्पाइसेस फ्रॉम एनी अदर कंट्री, इंडिया वाज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस टू ब्रिटेन। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स में ट्रू फॉल्स कौन सी है? देखिए, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है कि इंडिया वाज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस टू ब्रिटेन, लेकिन इंडिया इंपोर्ट भी करता था स्पाइसेस को। कहां से? इंडोनेशिया से। वहां से परफ्यूम्स, अरक और शुगर, ये सब चीजें आती थी। अगर हम अफ्रीका से देखें, वहां जंगल हैं, जंगल में हाथी हैं और हाथी के पास दांत हैं, और उस दांत से हम आइवरी वहां से मंगवाते थे। और क्योंकि अफ्रीका में जंगल भी हैं तो वहां पेड़ हैं और पेड़ पर लगी हैं जड़ी बूटियां, उनसे हम ड्रग्स मंगवाते थे। तो अफ्रीका से, दिस रीजन में, यहां से ये आ रहा था इंडिया की तरफ। अब यूरोप से अगर देखें क्या आ रहा था, यूरोप से हमारे पास आ रहा था कॉपर। लेकिन यूरोप से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज आएगी यहाँ पे, पेपर। क्योंकि टेक्नोलॉजी उनके पास थी, हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी पेपर को बनाने की भी। आयरन उनके पास से आ रहा है, क्यों? उनके पास आयरन को बनाने के लिए, देखिए मिनरल को जब वो इकट्ठा करते हैं, उसको एक शेप देते हैं, वो सब कुछ उनके पास टेक्नोलॉजी है। चाहे रिसोर्स हमारे पास होगा और हमारे पास है, लेकिन बना तो वही रहे ना। आयरन रॉड तो वहीं से आ रही ना बन के, कॉपर वहां से आ रही इसी तरीके से। बॉक्साइट चाहे हमारे पास हो, जो कॉपर का ओर होता है, लेकिन अल्टीमेटली उसकी मैन्युफैक्चरिंग तो वहीं से हो रही है ना। लेकिन इंडिया एक्सपोर्ट भी बड़ा कुछ करता था। अब एक्सपोर्ट देखते हैं हम क्या करते थे।
तो इंडिया का एक्सपोर्ट करता था कॉटन टेक्सटाइल। देखो ये तो हमारे यहां हो गई कॉटन। इंडिया में आपको पता है कहां कहां होती है, सोचिए। देखिए इतने सुसाइड भी जो होते हैं ना, फार्मर सुसाइड, ये कॉटन फार्मिंग से जुड़े हुए हैं। ये महाराष्ट्र वाला एरिया, थोड़ा गुजरात वाला एरिया, ये पंजाब में सदर्न पंजाब वाला एरिया, हरियाणा का एरिया आता है, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं तमिलनाडु में भी हो जाती है। मेन एरियाज ये हैं। तो जो ये है इतना पूरे इंडिया में कॉटन हो रहा है। इंडियन कॉटन वॉज नोन फॉर इट्स क्वालिटी। हमारे यहाँ से सिल्क जाता था, हार्डवेयर बनाते थे, इंडिगो तो को लेकर हम इतना कुछ पढ़ेंगे आगे जाके। हम पढ़ेंगे नील दर्पण के बारे में, और विल बी टॉकिंग अबाउट इंडिगो रिवोल्ट ऑल्सो, एंड गांधीयन जो रिवोल्ट था उसके बारे में बात करेंगे हम। इंडिया से और क्या हमारे यहाँ पैदा होती चीजें जो सारे लोग यूज करते होंगे, ऐसी बड़ी कॉमन सी चीजें जो इंडिया में ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, राइस और व्हीट, ये एक्सपोर्ट करते थे। शुगर, पेपर, ऐसी छोटी मोटी स्पाइसेस करते थे। प्रेशियस स्टोन्स हम करते थे एक्सपोर्ट इंडिया से। क्या और आखिरी चीज थी ड्रग्स। ठीक है जी, दीज वर आर मेन एक्सपोर्ट्स। अब ट्रेड तो हम करते थे, तो पर ट्रेड की कंडीशन क्या थी? हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे कि इंपोर्ट ज्यादा करते थे? अगर आप सोचें, आप हैरान हो जाएंगे जान के कि हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से इतना ज्यादा था कि इंडिया को सिंक ऑफ प्रेशियस मेटल्स कहा जाता था। इसका मतलब क्या है? यानी कि जब हम इंपोर्ट करते थे तो क्या होता था, ये इंपोर्ट है, ठीक है जी, ये पैसा गया इंडिया से बाहर, दिस इज इंपोर्ट। इंपोर्ट में क्या होता है, सामान आया, पैसा बाहर गया। अब एक्सपोर्ट में क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट के अंदर जो पैसा है वो इंडिया में आया और सामान इंडिया से बाहर गया। तो उस टाइम पर जो पेमेंट होती थी वो गोल्ड में, सिल्वर में, इन चीजों में होती। तो इंडिया में इतना गोल्ड सिल्वर आने लग गया एक्सपोर्ट ज्यादा होने की वजह से कि हमें सिंक ऑफ प्रेशियस मेटल कहने लग गए। कुछ लोग इसको भारत सोने की चिड़िया से इस टाइम को भी जोड़ने लग जाते हैं, और ऐसा कहा नहीं जा, इस हिस्टोरियन इस चीज को इस टाइम पीरियड से नहीं जोड़ते। तो मैं आपको सिर्फ एक बात याद रखने के लिए कह रहा हूं कि 18th सेंचुरी में इंडिया का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा था। इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड अगर देखें, थोड़ा सा क्लैश है हिस्टोरियंस का। अलग अलग बुक्स में अलग अलग बातें मिलती हैं कि इस टाइम पे जो हमारा लोकल इंटरनल जो ट्रेड था, फॉरेन ट्रेड था, उसके ऊपर वॉरफेयर, डिसरप्शन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर का कोई असर था कि नहीं? असर था, ठीक है जी। तभी हमने ये भी पढ़ा कि ट्रेड रूट्स के ऊपर बहुत सारे किंग्स ने, एम्परर्स ने वो चौकियां बनाई, वो सब कुछ बनाया, पुलिस थाने बनाए, सिक्योर रोड। शेरशाह सूरी ने जब जो रोड थी वहां पे, उसके ऊपर उसने धर्मशालाएं कितनी सारी बनवाई थी। तो दैट इज थिंग। तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम्स थी जिनको सॉल्व किया गया, ठीक है जी। तो ट्रेड रूट पे लूट होती थी, रॉबर्स और मराडर्स होते थे। मराडर्स इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब है कि जो बंदा सिर्फ बूटी सर्च करने के लिए अटैक करता है। बूटी मतलब आप पैसा समझ लीजिए, बस एक जो किसी के पास पड़ा है। तो एवरी रूलर ट्राई टू इंपोज हायर कस्टम ड्यूटी। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड इससे मुश्किल हो गया। अब आप सोचिए, आई विल शो यू, यहाँ पे दिस इज इंडिया, ठीक है, ये इंडिया का मैप हम देख रहे हैं। और राइट, अब इस इंडिया के मैप में बहुत सारी स्टेट्स हैं। ये छोटा सा यहाँ त्रावणकोर आप देखे हैं, ये मराठा अंपायर बहुत बड़ा था, कितना था। बीच में यहाँ पे फिर कोई और स्टेट आ गया, या इस तरफ बंगाल आ गया, ये पंजाब है यहाँ पे। तो अलग अलग एरियाज हैं सबके, ठीक है। हर बंदा कहता था जब आप मेरी स्टेट में एंटर करेंगे तो यू विल हैव टू पे मी मनी। तो जब अब इंडिया इसी को इतना ड्यूटी लगने लग गई तो चीजें महंगी हो गई। और हम आगे जाकर देखेंगे इवन ब्रिटिशर भी इसी के पीछे थे। ब्रिटिशर तो इंडिया में जो लड़ाई का सबसे पहली उनकी लड़ाइयां होती हैं वो इसी चीज को लेकर होती हैं, और वो सी रूट को कंट्रोल करना चाह रहे होते हैं। वो आपस में लड़ रहे हैं कि सी रूट को फ्रेंच कंट्रोल करेंगे, पोर्चुगीज करेंगे, डच करेंगे, यू नो। अगले लेक्चर में आई विल क्लैरिफाई यू दिस पॉइंट। अब पॉलिटिकल फैक्टर्स देखें इंडिया को, ऐसे कौन से थे जो हमारी इकोनॉमी को नुकसान कर रहे थे इस टाइम पे। देखिए, नादिर शाह ने इस टाइम पे दिल्ली को प्लंडर किया, ठीक है जी। आपको मैप पर लोकेशन थोड़ी मार्क करनी चाहिए। दिस इज द रफ लोकेशंस आई एम मार्किंग, ठीक है जी। तो यू विल हैव टू कंफर्म फॉर द एग्जैक्ट लोकेशन। अगर हम अब्दाली की बात करें, उसने कहां कहां लूटा, देखिए उसने ये रहा लगभग लाहौर, ये लाहौर उसने लूट लिया यहाँ पे, ठीक है जी। ये यहाँ पर दिल्ली था, ये लाहौर लूटा, दिल्ली लूटा, और ये उसने मथुरा लूटा। अब जाट्स ने आगरा लूटा, मराठास ने कहां लूटा, ये कहीं यहाँ पर है सूरत, थोड़ा सा इस तरफ है सूरत, यहाँ सूरत लूट लिया उन्होंने। डेक्कन का एरिया लूटा उन्होंने जाके मराठास ने, गुजरात का एरिया लूटा। तो सिख्स ने यहाँ सरहिंद के अंदर लूट मचाई, हमने यहाँ ये भी पढ़ा, ठीक है जी। सिख अंपायर के टाइम पे उस पर हर एक ने लूटा। हम ये नहीं कह सकते कि बाहर से सिर्फ मुस्लिम्स ही आए थे लूटने, हमने, हमारे अपनों ने भी लूटा और बाहर वालों ने भी, ठीक है जी, देश को हमारे। तो एक्चुअली में
असलियत ये है कि लूटने वाले का कोई धर्म ही नहीं होता, ये तो मैं आपको समझाने के लिए यहां पर बता रहा हूं, ठीक है ना जी। वो लुटेरे हैं, उनका कोई धर्म नहीं है, देयर स्पाइनलेस पीपल। अब देख एक और चीज हुई, अब बात करते हैं आर्टिसन क्लास की। एक तो ट्रेड हो गया है ना जी, अब आर्टिसन क्लास क्या है, जो ये कुछ भी जो आर्ट से जुड़ी हुई चीज बना रहे हैं, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे वो कोई हैंडीक्राफ्ट है, ये सब आर्टिसन वाले बन गए। तो व्हाई वाज आर्टिसन क्लास सक्सेसफुल बिफोर दिस, आपको पहले ये समझना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई वाज आर्टिसन क्लास सक्सेसफुल बिफोर दिस, एंड द रीजन इज बिकॉज देयर वाज रॉयल पैट्रनेज। राजे महाराजे बैठे हैं, क्या कह रहे हैं जी, चलो जी हमारा पोर्ट्रेट बनाया जाए आज। तो क्या हो गया उसके अंदर, उसको पैसे मिलते हैं। जब यहां पर लूट खसूट शुरू हो गई तो हु विल हैव टाइम एंड मनी फॉर डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स, सो दे डिक्लाइन, so they declined, and now because of this artists, there was a huge artisan class in Delhi and Agra, they declined, and because trade declined, as I talked about earlier trade कम हुआ, आर्टिसन का जो प्रोडक्ट था जो इंडिया से बाहर जा रहा था अब वो भी नहीं जा रहा, तो उसको फिर और नुकसान हुआ, एक्सपोर्ट उसका कम हो गया आर्टिसन का। अब इतने सारे आर्टिसन है, लेकिन देखिए हर चीज में ना कुछ अच्छा ही छुपा होता है। क्या हुआ, इतने सारे आर्टिसंस थे, बिकॉज ऑफ सो मेनी आर्टिसंस दे लॉस्ट देयर जॉब, दे स्प्रेड टू वेरियस सिटीज इन इंडिया, वेरियस, एंड इन ऑल दो सिटीज इन इंडिया आर्ट डेवलप्ड। they went to Varanasi, Lucknow, Patna, Faizabad, and they become the hubs of artisanal production. ठीक है, this is the image, this is a representative image that how the things were shifting to other set of people, not artisan class. Artisan class पीछे रह रही है यहाँ पे। India manufacture still remained popular, चाहे वो कॉटन, चाहे वो जूट, आप ये देख सकते हैं साइड पे इमेज में, चाहे वो कॉटन है, चाहे वो जूट है, और चाहे वो सिल्क है, हम तीनों के अंदर हम फिर भी राइज किए। सिल्क फैब्रिक, शुगर, जूट, डाई स्टफ, मिनरल, मेटालिक, आर्म्स बनाने में यूज, हमारा सब यूज हुआ। अब जूट का होता है जी, आपको पता है जूट का मेजर एरिया जो है वो है वेस्ट बंगाल, सॉरी बांग्लादेश में आज के। मैं आपको चीज बताऊं, पार्टीशन के टाइम पर क्या हुआ, जितना आधी चीज उनके पास चलेगी, आधा सामान हमारे पास रह गया, तो उसकी वजह से ना उनकी तरफ जूट इंडस्ट्री डेवलप हो पाई, ना हमारी तरफ जूट इंडस्ट्री डेवलप हो पाई। उनके पास जूट इतना सारा चला गया, दुनिया का मेजॉरिटी जूट उनके पास पैदा होता है, हमारे पास यहाँ इंडस्ट्री रहेगी, जूट की प्रोडक्शन कम हो गई, दोनों तरफ को नुकसान हो गया। खैर दक्का मुर्शिदाबाद की बात करें, बंगाल, देवर इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे, टेक्सटाइल प्रोडक्शन सेंटर, जूट हो रहा है। जूट से क्या बनता है जी, बोरियां, आजकल बोरी, सैक्स, और कॉटन टेक्सटाइल की बात करें, they were popular across India, from Lahore to Lucknow, from Multan to Masulipatam, and from Mumbai to Madras, पूरे एरिया के अंदर कॉटन टेक्सटाइल इंडिया में पॉपुलर था। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इंडिया में, इंडिया हैड अ वेरी पॉपुलर विद एक्सेप्शनल टैलेंट इन शिप मेकिंग इंडस्ट्री। नाउ शिप मेकिंग इंडस्ट्री का मतलब शिप बनाने का कारोबार, और दिस ब्रिटिशर्स का भी ये कहना था, इन सम ब्रिटिशर्स सेड इट, in shipbuilding probably Indians taught far more to Britishers than they learned from them. Indians ने Britishers को शिप बनाने सिखाए थे। देखो आज हमारी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इतने बुरे हाल में, अगर आप कंपैरिजन करें, why do we need to learn from our history, हमें हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत क्या है, यहां से समझ आता है हमें अपनी स्ट्रेंथ्स हमारी क्या है। शिप बिल्डिंग अगर हमारी उस टाइम पे स्ट्रेंथ थी तो आज भी तो होनी चाहिए, और इंडिया में इस टाइम पे शिप जो ना, हमारे पास जंक यार्ड इतने बन रखे इंडिया में अच्छे हैं, एक विशाखापट्टनम, एक आधा मुंबई की तरफ है, कोई बहुत अच्छे नहीं है इंडिया में, तो उसके ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए। जब आप इकोनॉमी का आंसर लिखिए, यू कैन टॉक अबाउट इट, हाउ थिंग्स हैव डिग्रेडेड, आप शुरू आंसर कीजिए ना 18th सेंचुरी से। फिर अब देखिए, पीटर द ग्रेट ऑफ रशिया ने उस टाइम पर कहा था क्या, कि कॉमर्स ऑफ इंडिया इज द कॉमर्स ऑफ वर्ल्ड, एंड ही हु कैन एक्सक्लूसिवली कमांड इज द डिक्टेटर ऑफ यूरोप। तो कितनी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। उसका ये कहना था कि अगर आप इंडिया का बिजनेस कंट्रोल कर लिया ना, तो आप यूरोप पे भी राज करने लग जाओगे। दिस वाज सेड बाय पीटर द ग्रेट ऑफ रशिया। कंक्लूजन क्या है, कंटिन्यूटी तो थी इकोनॉमिक लाइफ में, आप ये कह सकते हैं कोई एफरवेसेंस नहीं थी। एफरवेसेंस होता है कि कोई उबाल नहीं था, कोई चीज आगे नहीं बढ़ी थी, ठीक है, वही की वही थी, चीजें रह गई। इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर 18th और 17th सेंचुरी में देखें, हाँ ट्रेंड जो था वो डिक्लाइनिंग ही था। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की बात करें एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन में, व्हेन कंपेयर टू, वो था डिस्ट्रेस था, लेकिन ब्रिटिशर्स के कंपैरिजन में कम था। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एजुकेशन ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। देखो
इट वॉज नॉट नेग्लेक्टेड, ठीक है, देते थे, लेकिन डिफेक्टिव एजुकेशन थी. कैसे? वी विल टॉक अबाउट इट. क्या पढ़ाते थे हम पढ़ाते थे लिटरेचर, लॉ, रिलीजन, फिलॉसफी, लॉजिक. सोसाइटी को इन चीजों से सस्टेन किया जा सकता है, लेकिन सोसाइटी की तरक्की, सोसाइटी कैन नॉट डेवलप with society can sustain with literature, law, religion, philosophy and logic, but to develop we need science, technology, geography. Why could Britishers rule India? Because they had science, technology and geography. Why could Britishers rule the world? What is happening today? The country which had nuclear power in 1940s, that is USA, they threw the bomb and they controlled the world. तो science and technology rule करती है. तो कोई इंडिया में रैशनल फैक्चुअल स्टडी नहीं होती थी. मैंने एजुकेशन वाले करंट अफेयर की मैं डालूंगा वीडियो आने वाले टाइम में, आप यू सी दैट वीडियो. आई विल टॉक अबाउट कि व्हाट इज एलिंग साइंस इन इंडिया. वी डोंट हैव टीचर्स, रिसर्च पेपर्स, पीएचडीज, 1/3 भी नहीं है. केनिया जैसी कंट्री हमारे से आगे है. अ कंट्री लाइक केनिया इज फार अहेड ऑफ अस. खैर, कमिंग बैक टू हिस्ट्री, नो रैशनल और फैक्चुअल स्टडी ऑफ सोसाइटी वाज देयर. ओरिजिनल थॉट वाज डिस्करेज्ड एंड रिलायंस वाज प्लेस्ड इन एंशिएंट लर्निंग. अब प्रेजेंट तो देखो क्या है. अगर सेंटर्स ऑफ हायर लर्निंग अगर हम देखें तो उसके अंदर क्या था, उसके अंदर क्या हो रहा था कि दे स्प्रेड ऑल ओवर कंट्री, राइट, एंड फाइनेंस बाय नवाब्स, राजाज एंड जमींदार्स. हिंदूज के अंदर अगर आप देखें एजुकेशन वो ज्यादातर जो संस्कृत में होती थी वो ब्राह्मण ही पढ़ते थे. पर्शियन लैंग्वेज ऐसी बन गई थी जो कि हिंदू और मुस्लिम्स दोनों की लैंग्वेज थी. इट वॉज नॉट द लैंग्वेज ऑफ मुस्लिम्स, नेवर. इट वॉज लैंग्वेज ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स. इट वॉज नॉट जस्ट द लैंग्वेज ऑफ मुस्लिम्स. एंड एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें, इट वॉज मेनली कन्फाइंड टू हायर क्लास ब्राह्मण, राजपूत, वैश्यास एंड मेनी पीपल फ्रॉम लोअर कास्ट. एलिमेंट्री एजुकेशन, नॉट हायर एजुकेशन. हिंदूज कैन लर्न फ्रॉम टाउन्स एंड विलेजेस. मुस्लिम्स कहां से सीखते थे? मौलवी से सीखते थे, मकतब से. मकतब ये मस्जिद के अंदर जाके जो जगह होती है वहां बैठ के पढ़ाते हैं. अब वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स ब्रिटिशर्स आ गए, हमारे एजुकेशन का लेवल वहीं खड़ गया जो 100 साल पहले था. ये किया ब्रिटिशर्स ने आगे हमारे साथ. वॉरेन हेस्टिंग ने 1813, वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था. हम सारे गवर्नर जनरल्स करेंगे और ऐसे करेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे उनको अगले आने वाले लेक्चर्स में. वॉरेन हेस्टिंग ने 1813 में कहा था, India had in general superior endowments in reading, writing and arithmetic than the common people of any nation in Europe. हिंदुस्तानियों की अकल यूरोपियन के किसी भी यूरोपियन देश से ज्यादा थी. हिंदुस्तानियों को जो अकल थी, टीचर्स को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी उस टाइम पे. नॉट अनलाइक टुडेज वर्ल्ड, राइट, जहां पर ना टीचर वैसे रहे ना स्टूडेंट वैसे रहे हैं. दिस हैज डिग्रेडेड ओवर द सेंचुरीज. Girls were seldom given education. हालांकि there were some women who were exception to it, right? There were women like Ahilyabai Holkar was there. She was very well educated, you know. So there were women like that. Now social and cultural life, जो इंडिया की सोसाइटी थी वो डिवाइडेड थी कुछ हद तक, लेकिन उसके अंदर यूनिटी बहुत ज्यादा थी. पहले हम बात करते हैं डिवीजन की और फिर हम बात करते हैं यूनिटी कैसे थी उस टाइम पे. एक तो हम अपने पास्ट को लेकर बैठे रहे. That was our past. Stagnation and dependence on past was there. People were divided on the basis of religion, region, tribe, language and caste. Stop for a moment and think for yourself. Do you also think this way? Don't we divide? Oh, आप कहाँ से? साउथ इंडिया से. हम नॉर्थ से हैं, हम नॉर्थ ईस्टर्न हैं. आप, you know, that thing is not good. And then religion is that we have so many divisions. But Indian social structure is such that we are a mosaic. ठीक है ना, हम जो आता है एक्सेप्ट कर लेते हैं. You know, when we talk about when I'll teach you sociology for in general and especially for UPSC exam, we'll talk about it, that how India is not a melting pot like Europe and we are rather a mosaic जिसके अंदर we have place for everyone. Casteism was the central feature of Hinduism. Intercaste marriage was forbidden. There were restrictions on interdining among different castes. Caste decided trade and profession. It was possible for a person to acquire higher social status by acquisition of higher social status of higher officer और पार. ज्यादा बड़ी पार ले लो. देखो, होलकर फैमिली बैकवर्ड थी उस टाइम पे, लेकिन उन्होंने फिर भी इतनी प्रेस्टीज पाली. कैसे? बड़ी पार पाके. मुस्लिम्स की बात करें, इन स्पाइट ऑफ रिलीजन, मुस्लिम्स का रिलीजन क्या सिखाता है? यूनिटी. फिर भी उनके रिलीजन के अंदर डिविजन आई, कास्ट के बेस पे, रेस के, ट्राइब के, स्टेटस पे.
सुन्नी शिया कॉन्फ्लिक्ट ने तो आज भी दुनिया डुबो रखी है। अभी कल ही मैं खबर पढ़ रहा था, शायद आज ही, पाकिस्तान के अंदर कितने सारे शिया मुस्लिम्स को मार दिया गया। पाकिस्तान इज अ सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री। वाई? ईरानी मुस्लिम कहता था मैं अफगानी मुस्लिम से अलग हूं, और वो कहता था मैं तुरानी मुस्लिम से अलग हूं, और वो कहता था मैं हिंदुस्तानी मुस्लिम से अलग हूं। सो देयर वाज अ फाइट. A large number of Hindus also converted to Islam, and they carried their those softer versions of caste system to Islam. You know, there in India you will find there in 18th century, partially now also, there were Sharif Muslims, right? And then there were Ajlaf Muslims. Sharif Muslims kya the? They were nobles, scholars, priests. These are highly educated Muslims. And then there were Ajlaf Muslims who were less educated. Just like in Hinduism, lower caste cannot study, higher caste, for Brahmins were mainly only studying. So those divisions. Now let's talk about family system at that time. So it was primarily patriarchal. Patriarchal matlab male member was the dominating person, and he inherited as through the male. The inheritance was in the male line. Female would not get any property. Kerala, Nayars were matrilineal. That is an exception. But if you move to northeastern India, many tribals were and they still are matrilineal. And women outside Kerala could live only as mother and wife. हाँ, mother and wife को respect बड़ी देते थे, लेकिन they could only be mother and wife. Exception, as I said, Ahilya Bai Holkar is there. Then women of upper class were in a worse condition. They were not supposed to work outside their home. तो उनकी condition और बुरी थी. पर्दा was common among higher classes only, not lower classes. इतना common नहीं था. And वो northern India में ज़्यादा था पर्दा system than southern India. Boys and girls were not allowed to mingle. ये तो बहुत ही मतलब उस टाइम पे बुरे हाल थे. और अब मैरिज सिस्टम की बात करते हैं. एक मैन जो था वो कर सकता था जितनी मर्जी शादियां, एंड जो फीमेल थी शी वाज सपोज्ड टू मैरी ओनली वंस. और एक बार अगर उसका हस्बैंड मर गया, हो जाओ जी, जय माता सती हो जाती थी. फिर वो तो गलत है ना ये. सी आई नो सम ऑफ यू स्टिल फील कि जी सती इज फाइन, ये वो, वट एवर इट इज, बट हाउ यू कैन नॉट किल अ लेडी फॉर दिस. शी हैज दिस अ मर्डर. इंडियन लॉ, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड उसे मर्डर कहता है आज भी. चाइल्ड मैरिज 3-4 साल के बच्चे की शादी कर देते थे. In upper class, evil of dowry, huge expenses on marriage was there. Peshwas tried to control it. Later, these people from Rajasthan, Rajputs also tried to control it. We'll see. Sati was so common, mainly in Rajputana. You won't believe this, that Sati system took so many lives in Rajputana. That is unimaginable. Bengal mein it was there, northern India. It was uncommon in South India. South India was, I'll say, always ahead of northern India. It still is, I feel so, somewhere. Uncommon in south. Marathas did not encourage it. Widows belonging to higher caste could not remarry. Though in non-Brahmins में, महाराष्ट्र में या जाट्स में हम देखेंगे, या पहाड़ी इलाकों के लोगों के अंदर, they could marry. Women clothing, diet and movement were restricted. क्या कपड़े पहनेंगी और उनकी कहाँ घर से कितना बाहर जा सकती हैं, और their diet, so many things were restricted. ठीक है. अब woman was supposed to serve selflessly members of her husband or her brother's family. Raja Savai Jai Singh of Amber and Maratha General Parshuram Bhau, they tried to promote widow remarriage. हम ना, क्या होता है जब विडो रीमैरिज की बात आती है ना, हमेशा बाद वालों के बारे में पढ़ते रहते हैं, और पेपर के अंदर हमें अक्सर क्वेश्चन ना उल्टे सीधे आ जाते हैं. सो टू आंसर दोस ऑकवर्ड क्वेश्चन यू मस्ट रिमेंबर दीज नेम्स ओवर हियर. जनरल परशुराम भाऊ, सी हु वाज दिस गाय, दिस पर्सन, एंड राजा सवाई जय सिंह ऑफ अंबेर. These two people, they worked for the cause of widow remarriage, but though they failed, but they worked for it. Must remember these two names. This is very important fact from today's lecture. Next is culture. How was the culture at that time? There was exhaustion of culture. खत्म हो गया था हमारा कल्चर, हिल गया था. इसका मतलब ये नहीं कि डार्क एज ही आ गई थी, बिल्कुल ही खत्म हो गया था. इट वॉज नेग्लेक्टेड क्योंकि राजाज वर इम्पावरिश्ड. पैसा आता है तो कल्चर डेवलप होता है जी. देखो, many artists of Mughal, we talked about it, they moved to Hyderabad, Lucknow, Faizabad, Kashmir, Patna. They brought with them. देखिए इंडिया के अंदर क्या हुआ, जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लोगों का इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर हुआ, जिससे नए नए कल्चर बनकर सामने आए. न्यू स्कूल्स ऑफ पेंटिंग वर बॉर्न. We'll be doing, when we do cultural history, we'll be covering all kind of paintings. You know, right from Bhimbetka painting to the M.F. Hussain, we'll cover every kind of painting there. So born and achieved distinction
like Kangra painting, Rajputana. Now we talk about architecture. How was architecture? Have you been to Imam Bada? Imam Bada is in Lucknow. It reveals the proficiency in technique, but again architectural taste नहीं था उसके अंदर. City of Jaipur and its building, they were always good. Rajputana, they were royal people. There is Padmanabhapuram Palace, that is remarkable architecture and mural painting. It was also constructed in 18th century. We will be covering all this in much more detail. This is just to give you an idea how the things were at that time. Do you remember who was the emperor at whose time music became popular in 18th century? It was Muhammad Shah Rangila. Khayal kind of singing, if you remember. Kathak developed, the main dance of Uttar Pradesh. Let's talk about literature now. Urdu language became popular from 18th century. It became a source of communication in higher classes. Brilliant Urdu poets were there at this time, like Mir, Soda, Nazir, and in 19th century came Mirza Ghalib. Brilliant Hindi was also developing. You see, Malayalam literature also developed. Who were the rulers in Malayalam? There one was Martand Varma and one was Rama Varma. We talked about them. We're done with this. You should remember this. Kunchun Nambiar was a great poet of this time. See, all these are random facts. Why I keep on telling you few random facts? Because there is no need to go into much detail of these facts. But in paper, these questions come as it is. So I'm just mentioning these few facts because they are mentioned in the prominent books of ours. ये कुछ नाम आपको इसलिए याद करने हैं रैंडमली क्योंकि ये पेपर में एज इट इज उठ के आते हैं, इनकी ज्यादा डिटेल में मत जाइए, कोई जरूरत नहीं है. ठीक है जी. नेक्स्ट इज कथकली लिटरेचर. ये साइड पे कथकली का जो मुखौटा ये वाला होता है कथकली डांस, इतना मेकअप होता है जिसमें. कथकली लिटरेचर, ड्रामा, डांस सब कुछ 18th सेंचुरी में डेवलप हुआ. असम के अंदर लिटरेचर वहां अहोम किंग्स ने डेवलप किया. गुजरात के अंदर दयाराम बड़ा फेमस हुआ. ठीक है जी. हीर रांझा, this was a romantic epic written in Punjab by Waris Shah. You can see this on the side. Sindhi literature also made enormous development. Have you heard of Risalo? Risalo is very famous product in literature of India. Abdul Latif composed this famous collection. Sanchal and Sami, SS, Sanchal and Sami, they were popular Sindhi poets. Do remember their names. See, pause the video here, look at this slide, try to remember these names because they can come in paper as it is. I'm telling you, these can come. These are from very standard books. Poetry, we're done with literature. Next is poetry, kavitaएं. All language poetry lost touch with life and became decorative, artificial, mechanical, traditional. जो प्रैक्टिकल होती है, जो टच विद नॉर्मल लाइफ की जिंदगी की पोएट्री थी वो नहीं हुई. इमेजिनरी पोएट्री ज्यादा होने लगी. शान बान शान डेकोरेटिव की तरफ बढ़ गए. पेसिमिज्म एक पोएट्री में यहां दिखने लग गया कि कितने बुरे हाल है जिंदगी के. इस टाइम पे आप वैसे देखें यूरोप के अंदर भी ऐसी चीजें आ रही थी, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर भी ऐसी बुक्स आ रही थी, लिटरेचर आ रहा था उस टाइम पे. सेंस ऑफ डेस्पेयर लोगों के अंदर बढ़ गया. तय्यू मानावर, आई एम नॉट श्योर द प्रोनाउंसिएशन, तय्यू मानावर, he was one of the best exponents of sitar poetry in Tamil. He protested against the abuse of temple rule and caste system. Music, poetry and dance flourished under Tanjore. It's a beautiful palace over there, Tanjore mein. Tanjore temple is very famous. Music, poetry and dance flourished in this first half of 18th century. कुछ weakness थी इंडियन पूरे सिस्टम के, कल्चर में, एजुकेशन में, एवरीथिंग, नॉट जस्ट इंडियन कल्चर. साइंस के अंदर हम देखें वीकनेस थी. 1500 से लेकर 1700 तक देखें, दुनिया भर में जब एक रेनेसा का पीरियड आ गया था, उसके बाद फिर क्या हुआ था कि जो 15 एंड 17 ग्रेट साइंटिफिक अचीवमेंट्स वर मेड. और इंडिया साइंस में इस टाइम पर वी लेफ्ट बिहाइंड द साइंस. वी फोकस्ड ऑन ट्रेडिशन, सुपरस्टिशन. वी फेल टू रिस्पॉन्ड टू यूरोपियन चैलेंज. See, through these videos I urge you to leave all the superstitions behind. Focus, be practical, be rational, be scientific. दिल्ली रास्ता काट जाएगी तो कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, आप कुछ लोगों के बिलीफ हो सकते हैं, मैं आपको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूं, बट बी रैशनल अबाउट इट. आफ्टर ऑल यू आर एस्पायरिंग फॉर सम सर्विस टू द पीपल ऑफ इंडिया. एक्सेप्ट, नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्ट Tipu Sultan. None realized the importance of science. Do you remember in the earlier lecture somewhere I mentioned that he even invented missiles in India. He used rockets before Britishers in India. But our scientific advancement was negligible when compared to Europeans. The weakness in realm of science was to large extent responsible for total subjugation of India by most advanced countries of that time.
साइंस की तरक्की ना होने की वजह से हम उस टाइम पे गुलाम बने, ये बहुत बड़ा कारण था। अगर हमारी साइंटिफिक तरक्की होती शायद हम गुलाम ही ना बनते उस टाइम पे, और आज हमें साइंस को डेवलप करने की जरूरत है। डिक्लाइन कैसे हो गया? स्ट्रगल फॉर पावर एंड वेल्थ और इकोनॉमिक डिक्लाइन और सोशल बैकवर्डनेस और कल्चरल स्टैग्नेशन आ गई, इमोरलिटी फैल गई, खास करके नोबल्स के अंदर, लॉयल्टी, ग्रैटिट्यूड, फेथफुलनेस ऐसी चीजें ही खत्म हो गई लोगों में। सिंगल माइंडेड परसूट हो गया किस चीज का? अपने मैं राजा बन जाऊं, लड़ लो आपस में। और जो कॉमन मैन था ही वाज, लेकिन कॉमन मैन ऐसा नहीं था, ये नहीं कि आप, यू विल बी सरप्राइज्ड, कॉमन मैन ने उस टाइम पर ना वो इतनी थेफ्ट करता था, ना वो इतनी शराब पीता था, ना ही वो वायलेंस करता था। ही वॉज नॉट इन टू थेफ्ट, ड्रंकनेस और वायलेंस. He was not as debased as others were. So, and now we will talk about Hindu-Muslim unity. There is always a lot of talk about it. That was Hindu period, that was Muslim period. We were fighting ever since. They were Muslims ने हिंदू को तंग किया, हिंदू कहते मुस्लिम को तंग किया. I will tell you the reality today. Hindu-Muslim unity was very strong in 18th century. They were rather brothers, and they were brothers among brothers. भाइयों में भाई थे वो, and they used to share their joys and sorrows. Hindu writers often wrote in Persian. हिंदू पर्शियन भाषा में लिखते थे और मुस्लिम हिंदू में हिंदी भाषा में लिख रहे थे. लिटरेचर उस टाइम पे, पोइम्स, लिटरेचर सारा वो मुस्लिम बंगाली में, बाकी वर्नाकुलर में लिख रहे थे. वो हिंदू की सोशल लाइफ से, राधा कृष्णा पे, कभी नल पे, कभी नल और दमयंती पे पेंटिंग बना रहे हैं, वो मुस्लिम कर रहे हैं. उर्दू भाषा आई. उर्दू वॉज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स. आस्क योर एल्डर, स्पेशली इन नदर्न इंडिया, योर ग्रैंडफादर और मे बी देयर ग्रैंडफादर must have read Hindi Urdu newspaper. I remember even at my home we used to have Urdu newspapers just 10 years back, till 10 years back. Now we don't know Urdu language, such a good language. It's not of Muslims and it's not of Hindus, it's for everyone. Such a good language. And then you must refer to Markandeya Katjuji's post. He talks about Urdu, how it united India. All the politics in all earlier lectures I have talked, all the leaders after Mughals, including many of the Mughals, they were secular in their approach. Many of them. Few of them were bad. Hindu-Muslim unity. You see, there was so much of mutual influence and respect because of Bhakti movement and Sufism that Hindus and Muslims, you see, it's not just Muslims. I'll just put it here. It's not just among Muslims and plus Hindus. Everyone continued to grow. Look at this, how the people are dancing above in Bhakti movement, and look at this dance below, how they are dancing. Do you find any similarity in them? Look at the way their hands are moving. This is a depiction of culture. Hindu and Muslims, we are doing this almost so many same things. Hindus worship Muslim saints, Muinuddin Chishti ji and who not, and Muslims showed equal veneration for Hindu saints. कबीर की पूजा दोनों ने की. Some local cults and shrines, local level पर जो होते थे, उसको दोनों रिलीजन के लोग रिस्पेक्ट करते थे. Muslim rulers, nobles, commoners, Muslims, they joined Hindu festivals, Holi, Diwali, Durga Puja, etc. And Hindus participated in Muharram processions. You see, they both were brothers. And even today we need to understand this. Marathas supported shrine of Sheikh Muinuddin Chishti in Ajmer, of course. And Raja Tanjore ka jo Raja tha, he supported shrine of Sheikh Shah ul Hamid of Nagaur. You see this, what is this happening? Even it's not just Hindu-Muslim unity, everywhere. Sikhs contributed 500 kg of gold to Varanasi for the temple, Kashi Vishwanath Ji temple. So everyone was united. We were one. We were humans, and not just purely Hindu-Muslim or whatever, or Sikh or whatever religion you want to say. Overall unity among Hindus and Muslims. Tipu Sultan, he used to give Sringeri temple. He was a Muslim and he used to financially support Sringeri temple and many other temples. Raja Ram Mohan Roy, you must have heard about him. Now, this person was sent to England by a Muslim king. When this person was given the title of Raja by a Muslim king, Akbar II, he was sent to England by him. Now, he was influenced by Hinduism and Islam as well. He appreciated both the religions.
See, no religion is higher or lower. All religions are teaching the same thing. Ways of life of upper class Hindus and Muslims merge. देखिए, अपर क्लास हिंदू और मुस्लिम की जिंदगी एक जैसी थी अगर हम कंपेयर करें अपर क्लास हिंदू और लोअर क्लास हिंदू से। यानी कि हिंदू और मुस्लिम की क्लास में यूनिटी थी, ना कि अगर अपर क्लास हिंदू और लोअर क्लास हिंदू आ जाए फिर उनके अंदर यूनिटी होनी चाहिए थी। नहीं थी इतनी यूनिटी जितनी अपर क्लास के हिंदू और मुस्लिम में थी। इसका मतलब कि हिंदू और हिंदू मुस्लिम यूनिटी तो थी, ये आपको मानना पड़ेगा। और ऐसे ही मुस्लिम्स के अंदर भी था सब कुछ। The people had far more cultural synthesis irrespective of religion than people following the same religion spread over different regions. Like today, it should be we are Indians. आज कैसा होना चाहिए कि we are Indians. यही इसका हिस्ट्री से हमें सीखने की जरूरत है. Why do we read history? History teaches us that if there is unity, then we can do something in future. So that's it, and I'll just leave you few questions. This question, if you want to answer it. Now compare the differences between Hindu-Muslim unity during 18th century and today's era. Right? This is a good question. Also discuss the reason for such differences. Suggest some measure to promote religious harmony in country. Hindu-Muslim unity 18वीं सदी के दौरान और आज की सदी के दौरान जो यूनिटी है, इसके अंदर क्या आप कोई डिफरेंस पाते हैं? क्या कोई कंपैरिजन पाते हैं? क्या है? लिखिए अगर कोई डिफरेंस, कारण क्या है उसके, और ये भी बताइए इसको हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करने के लिए व्हाट कैन वी डू. 10 मार्क्स, जस्ट 150 वर्ड. यू वांट टू राइट अ लॉन्गर आंसर, गो फॉर इट एंड सेंड योर आंसर्स टू fantasticfundas@gmail.com. आंसर्स प्लीज शुड बी इन पीडीएफ फॉर्मेट. कुछ लोगों के जो पहले आंसर्स आए हैं, आई विल आंसर देम, आई विल चेक देम वेरी सून बिकॉज बहुत सारे आ रहे हैं तो इट इज लिटिल डिफिकल्ट टू मैनेज टाइम. आई विल चेक देम. और जो पिक्चर खींच के भेजे आंसर की शुड बी वेरी क्लियर. अगला लेक्चर हम पढ़ेंगे कि कैसे यूरोपियन जब कंपनीज, मतलब आई एम वेटिंग फॉर दिस लेक्चर. इतना जबरदस्त लेक्चर होगा, आप खुश हो जाएंगे सुन के कैसे सब आए. अल्टीमेटली तो आपने कभी सोचा ये स्पेनिश क्यों नहीं हम पर रूल करके गए, ये पोर्चुगीज डच ये क्यों नहीं करते हमारे पर रूल, ये ब्रिटिशर ही क्यों आए. विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. That's it. If you like this video, please share it with your friends. Share it on Facebook at least once if you are seeing this video. I'm not charging you any money for this video. कोई पैसे नहीं मैं आपसे ले रहा हूँ. आप इतना तो मेरे लिए कर सकते हैं क्योंकि एक बार ये वीडियो देखते हैं तो एक बार Facebook पे जरूर शेयर कीजिए. For future videos, subscribe to our YouTube channel. आपकी मेल के अंदर अपडेट आ जाएंगे. And if you have any question, comment, observation or discussion, please do it in the comment section. I will definitely respond to you whenever I get time. That's all. Thank you for watching.